The man who crossed the bridge and closed the gap between the study of animal behavior and the study of human behavior was John Broadus Watson. Watson combined into one system the philosophical pragmatism of James, the psychological functionalism of Dewey, the experimental method of animal psychology of Yerkes, and the conditioning of Pavlov and Bechterew. Watson's सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन डिटर्मिनिज्म. तो वाटसन की पूरा जो स्टोरी है वो डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है, एम्पेरिसिज्म पे बेस्ड है, रिडक्शनिज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म. वाटसन का जो पूरा है ये रिडक्शनिज्म, डिटर्मिनिज्म, एम्पेरिसिज्म पे बेस्ड है, इन्वायरमेंटलिज्म पे बेस्ड है. ठीक है, डिटर्मिनिज्म, एम्पेरिसिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, रिडक्शनिज्म, ये चार प्रिंसिपल्स वाटसन के स्कूल में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट था, एविडेंस बेस्ड एम्पेरिसिज्म पे रिड्यूस किया है सारे रिस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट के का भी फोकस, इन्वायरमेंट पे भी फोकस है ना. द 4 प्रिंसिपल्स गाइडेड वाटसन्स वर्क एंड वर इनकॉर्पोरेटेड विद ग्रेट कंसिस्टेंसी इन हिज रिसर्च. ये चारों ही प्रिंसिपल ने वाटसन के काम को गाइड किया and they were incorporated with great consistency in his research. So in Watson's own eyes, his psychological system is such that given the stimulus, psychology can predict what the response will be. So वाटसन की अपनी आँखों में साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर स्टिमुलस दिया गया है तो साइकोलॉजी प्रिडिक्ट कर सके व्हाट द रिस्पॉन्स विल बी. और ऑन द अदर हैंड, if the response is given, then it was to specify the nature of effective stimulus. तो स्टिमुलस का जो नेचर है उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी स्टिमुलस को पोस्ट डिक्ट करना मेन चीज़ है. इन अकॉर्डिंग्स विद रेडिकल एम्पिरिसिज्म, वाटसन रिजेक्टेड एनीथिंग दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम विदाउट. रेडिकल बिहेवियरिज्म पे मानते थे वाटसन. ठीक है, ही रिजेक्टेड एनीथिंग दैट कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड. राइट, जो भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जा सकती उसको वाटसन ने भगा दिया साइकोलॉजी से. इन हिज बायस अगेंस्ट अनऑब्जर्व्ड फिनोमेना ही आउट डिस्टेंस Pavlov, एंड इन हिज zeal फॉर रेडिकल रिडक्शनिज्म ही मैच्ड ओनली बाय Bechterew. तो रेडिकल रिडक्शनिज्म पे फोकस था उनका, एंड ही अनऑब्जर्व तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए स्टडी में. राइट, दैट्स व्हाट ही बिलीव्ड. I do not wish unduly to criticize psychology, as Watson in 1900 said. It has failed signally, I believe, during the 50-odd years of its existence as an experimental discipline to make its place in the world as an undisputed natural science. The time seems to have come when psychology must discard all these references to consciousness. उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस को बाहर निकाल देना चाहिए. When it need not longer delude itself into thinking that it is making mental states the object of observation. तो when it should not consider consciousness. ठीक है, थिंकिंग जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इट इज़ मेकिंग मेंटल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मेंटल स्टेट्स को यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ों पे बात करें. ठीक है. Instead, Watson proposed a psychology which I should attempt to build up that would take up as a straight point first observable fact. तो Watson के according psychology should focus on something that was observable facts. The organisms, man, animal, है ना. तो observable facts, organism based, man, animals, they do adjust themselves to their environment by the means of heredity and habit equipments. ठीक है, एनिमल हो या मैन हो, we all adjust to the environment, hereditally भी और habit equipments के basis पे भी. Now these adjustment may be very adequate or they may be so inadequate that the organisms barely maintain its existence. Secondly, certain stimuli lead the organism to make responses in a system of psychology completely worked out. Given the stimuli, the response should be predicted. तो जैसे हम इसने बोला कि ऐसा साइकोलॉजी में अगर रिस्पॉन्स है आपके पास तो यू शुड स्टिमुलाई गिवन है तो प्रिडिक्ट करना रिस्पॉन्स को इज़ व्हाट शुड बी
the main matter of behaviorism. Watson's psychology dealt with overt behavior. He always talked about overt and observable behavior of the organism, its muscles, glands, and tissues. Watson hoped that all human behavior could be interpreted in the physical chemical terms. वाटसन का ये मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है इन फिज़िकल केमिकल टर्म्स. तो आप अभी एस्टॉनिश हो जाएंगे टू द फैक्ट कि हाउ मच फिज़िकल केमिकल टर्म्स में उसने बात की, बिहेवियर को बताया. ठीक है. सो हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वाटसन all human behavior could be interpreted in physical and chemical terms. Psychology as a behaviorist view it, ये उन्होंने निकाला था ना इनका एक पेपर. इट इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव. साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म के तौर पे पूरी ऑब्जेक्टिव साइंस है. इट्स एन एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच नीड्स इंट्रोस्पेक्शन एज लिटिल एज डू साइंसेज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तो साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, नेचुरल साइंस है. साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इज टोटली ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव चीज़ पे फोकस करती है. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है ये नेचुरल साइंस की. ठीक है. इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, वी डू नो इट, बट ये एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है, एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस है, एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है ये नेचुरल साइंस की. which needs introspection as little as does other science like chemistry, physics. तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. वाटसन ने खारिज किया इस चीज़ को. It is granted that the behavior of animals can be investigated without appealing to consciousness. The position is taken that the behavior of man and the behavior of animals must be considered on the same plane. हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैन का बिहेवियर, एनिमल का बिहेवियर इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्लेन. वी डू सी कि कंपैरेटिव साइकोलॉजी पे इनका बहुत काम था. तो कई एनिमल रिसर्चेज हुई और उनका इन्होंने फिर जनरलाइज किया ह्यूमंस पे. दिस सजेस्टेड एलिमिनेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन देमसेल्व्स will remove the barrier from psychology which exists between it and other sciences, right? तो जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ को पूरी तरह निकाल दिया गया साइकोलॉजी से. ठीक है. प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन देमसेल्फ विल बी रिमूव्ड. ये बैरियर ही पूरी तरह से निकाल दिया गया फ्रॉम साइकोलॉजी एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन इट एंड अदर्स. द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी बिकम द फंक्शनल कोरिलेट्स ऑफ स्ट्रक्चर and lend themselves to explanation in physical chemical terms. फाइंडिंग्स जो भी हुई साइकोलॉजी में आप देखते हैं ज़्यादातर फिज़िकल केमिकल टर्म्स में ही आंसर्स दिए गए, डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेनेशंस दी गई इन फिज़िकल केमिकल टर्म्स, राइट. द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी बिकेम फंक्शनल कोरिलेट्स ऑफ स्ट्रक्चर, lend themselves to explanation in physical chemical terms. In his programmatic book, Watson wrote as follows: Psychology as a science of consciousness has no community of data. The reader will find no discussion of consciousness, no reference to such terms as sensation, perception, attention, image, will. सब बाहर खदेड़ दिया उसने. I frankly do not know what they mean, nor do I believe anyone can use them consistently. Then we move on to नेचर वर्सेस नर्चर. तो ये वाला पीपीटी हो गया. ठीक है. फर्स्ट वाला. अभी हम ये 3 पेजेस करेंगे.